Delhi, Shri Sahib Singh Verma ji, distinguished freedom fighters, guests, ladies and gentlemen. It is my privilege to participate in the inaugural function of the year-long celebrations to commemorate the birth centenary of Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji was one of the great leaders of our freedom struggle and is held in the highest esteem by the people of this country. It is a happy coincidence that these celebrations will overlap with the celebrations marking the 50th year of India's independence. The occasion calls upon the people of India to realize the unfinished task of the leaders of the freedom struggle. These celebrations will provide an opportunity to the people, especially the youth, to learn more about the sacrifices which Netaji made for the liberation of our country. Subhash Chandra Bose was born 100 years ago in a distinguished family that was deeply imbued by the patriotic spirit which characterized the educated classes of Bengal at the turn of the century. Young Subhash was exceptionally gifted student and performed brilliantly in his academic career. Thereafter, he proceeded to Cambridge in Great Britain for higher studies with the ultimate objective of competing for entry into the civil service, which he successfully did in 1920. However, the fervent patriotism of Subhash Bose soon led him to an altogether different vocation. On the advice of Mahatma Gandhi, Netaji associated himself with the distinguished leader Deshabandhu Chittaranjan Das and soon became a darling of the younger generation of the national leaders as well as of the youth of the country. The goal of Purna Swaraj, or complete independence, reflected Netaji's strong commitment, as Netaji has it so feelingly said, and I quote, "I have been a dreamer of dreams, but the dearest dream of my life has been the dream of freedom for India," unquote. Netaji believed that a free India would be a blessing to the whole world. Indeed, this was prophetic, as the freedom movement in India paved the way for independence of the oppressed people everywhere in the world. Netaji was convinced that India had a distinct role to play in the world. As Congress President, Netaji also took keen interest in the economic development of the country and set up a national planning committee to prepare a program for the comprehensive industrialization of India. Therefore, the influence of Subhash Chandra Bose on the people of India was not confined only to the attainment of independence. In fact, he had a grand vision
of India not only as an independent nation but also as a prosperous and culturally creative country. This vision continues to inform our national endeavor even now. The victorious march of Indian National Army to the frontiers of India in the spring of 1944, led by Subhash Chandra Bose, constitutes a glorious phase in the history of our freedom movement. Inspired by his leadership, indomitable courage and determination, the people of India succeeded in liberating themselves from foreign rule in August 1947. The centenary celebration also reminded us about the duty we owe to our youths. They must be educated about the ideals for which Netaji stood and fought. It is time to reiterate to them the value of Netaji's qualities of leadership, patriotism, love for one's country, passion for freedom, commitment to duty and moral courage. I would like to make a special mention of two other important aspects of Netaji's vision which are extremely relevant to our society today. The first is Netaji's unshakable faith in secularism, and the other is his concern for women and ensuring their equality in our society. Women had participated as actively as their male counterparts in Netaji's struggle against foreign domination. The best tribute that we can pay to Netaji is to rededicate ourselves to the service of our country and to the realization of his grand vision. I hope and wish that the year-long celebrations of Netaji Subhash Chandra Bose's birth centenary will rekindle the spark of his vision and shows the way to build an India of his dreams. The committee has also decided to celebrate this historic day every year as Desh Prem Divas, and I would like to declare that this decision will be appreciated by one and all of my brothers and sisters of the nation. With these words, I would like to express my thanks to the HRD Minister. Before I conclude, I would again reiterate that all of us today, we will pledge ourselves to work to the ideals and principles of our great national leader. Thank you. Jai Hind. और अब आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन से सुने कि नेताजी के जीवन व आदर्श किस प्रकार हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। श्री के.आर. नारायणन। Respected Rashtrapati ji, Srimati Vimala Sharma ji, Honorable Prime Minister, Honorable Leader of the Opposition, Sri Atal Bihari Vajpayee ji, Honorable Sri Boma ji, Honorable Minister, Sri Beni Prasad Verma, Chief Minister of Delhi, Sahib Singh Burma, Colonel Dillon,
Captain Lakshmi Saigal, brave soldiers of the INA and friends. It was Netaji's ambition to hoist the tricolour on the Red Fort, and he declared that this historic Red Fort will be the graveyard of the British Empire. He nearly managed to achieve that, and the British government of the time, in retaliation, held the men of INA prisoners in this Red Fort and held the historic INA trials here. It was intended to insult the memory of Netaji, to taunt the Indian people, but those trials tend to be not a trial of the INA, but a trial of the British Empire itself. Our leaders, Jawaharlal Nehru and others, put on the gowns of the lawyers and appeared in defense in this Red Fort. The great Bhulabhai Desai argued that it was the right of a subject people to rebel against their rulers. And Pandit Jawaharlal Nehru argued that the trial was symbolic of the assertion of the freedom of the Indian people, that it was the old contest between the people of India and the British colonial government. Netaji's ideas today ought to inspire us. The best way to celebrate the centenary of the birth of this great Indian is to follow his call of unity and harmony among the Indian people, and work in the spirit of sacrifice for the prosperity of India and the welfare of the great Indian people. Netaji had not only brought together all the people of India abroad, all the religionists of India, but he awakened the women of India and drew them into the INA. The presence of Captain Lakshmi Saigal here will recall to us the heroic services rendered by the Indian womanhood in the INA's struggle. Mahatma Gandhi called Netaji the patriot of patriots. Today, these celebrations, I hope, will stir in us our patriotism, our sense of pride for our country, and inspire
and got us into the service of this country. I want to join you all in paying my humble homage to that great leader, that fearless fighter who brought India independence. I say he brought India independence because I recall then when Prime Minister Attlee, after he laid down his post, visited India in 1956, and he confided to the then Chief Justice of West Bengal and the acting Governor of West Bengal, Shri P.B. Chakrabarti, that the immediate cause of Indian independence were Netaji and the INA, that the transfer of power would not have taken place so quickly and in so unambiguous a manner without Netaji and the INA. So I join you all paying my tribute to this great son of India. Jai Hind. नेताजी ने कहा था, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक बने रहने के संकल्प की। इसी शुभ शुद्ध संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए अब माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से विनम्र अनुरोध है कि वे अपनी प्रेरणामयी वाणी से नेताजी के शौर्यपूर्ण जीवन की गरिमा का गुणगान करें। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन, भारत के प्रधानमंत्री श्री एस.डी. देवेगौड़ा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री एस.आर. बोम्मई, मानव संसाधन मंत्री, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, संचार मंत्री, श्री साहिब सिंह वर्मा, दिल्ली के मुख्यमंत्री, संसद सदस्यगण, दूसरे दिल्ली के विधायकगण, आज़ाद हिंद फौज के कर्नल ढिल्लों और कैप्टन लक्ष्मी सहगल, विदेश के राजनीतिक प्रतिनिधियों, आदरणीय सम्मानीय स्वतंत्रता सेनानियों, देवियों और सज्जनों, बच्चियों और बच्चों, जैसा अभी उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत स्वतंत्रता से हमारी आज़ादी लाने में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत बात की, उन लोगों ने माना, अंग्रेज़ों ने माना कि देश की आज़ादी में जब हमारी फ़ौज उठकर खड़ी हो गई, आज़ाद फौज, तो अंग्रेज़ों ने तय किया कि अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है और हमको आज़ादी मिल सकी। इस अवसर पर नेताजी के लिए यहाँ आ सकना, इसमें सम्मिलित हो सकना और राष्ट्र की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि और अपना आभार मानना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ।
ये लाल किला हमारे देश की सार्वभौमिक शक्ति का प्रतीक रहा है। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जब बहादुर शाह जफर को यहाँ बनाया गया था, हम लोगों की स्वतंत्रता की आकांक्षा को उद्वेलित करता रहा है। स्वयं नेताजी ने 5 जुलाई 1943 की भाषण में जब दिल्ली चलो का नारा दिया था तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि हमारा काम तो पूरा नहीं होगा जब तक कि हमारे बचे हुए वीर सिपाही ब्रिटिश साम्राज्य की कब्रगाह पुरानी दिल्ली के लाल किले पर विजयी मार्च नहीं करेंगे। इस दृष्टि से ये उपयुक्त है, ये माकूल बात है कि उनकी शताब्दी के समारोह का आरंभ इस पुराने ऐतिहासिक स्थान से किया जा रहा है, जो आज हमारी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की इच्छा का प्रतीक बन गया है। मुझे अब तक याद है जब 1928 में आवाज़ उठाने वाले कलकत्ता सेशन में कांग्रेस के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू युवा वर्ग के हृदय का हार बन गए थे। उस समय नेताजी हमारे सेवा दल के प्रमुख थे। मैंने तो अपने कमरे में उनकी वो तस्वीर लगाई थी जिसमें वो सेवा दल के नेता के रूप में खड़े हुए थे। अपने जुझारू व्यक्तित्व, जोशीले विचार और कर्मठता के कारण अपने समय में सुभाष युवाओं की शक्ति तथा युवाओं की आकांक्षा के प्रतीक बन गए थे। उनके द्वारा दिया गया दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे वाक्य सुनकर हमारी पीढ़ी के लोगों को शरीर में क्या जोश दौड़ जाता था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि मंजिल तक न पहुंच जाओ। यही बात मुझे नेताजी के आह्वान में मालूम पड़ती है। नेताजी की गतिशीलता को न तो जेल की सलाखें नियंत्रित कर सकी, न ही उनके स्वास्थ्य की खराबी उन्हें रोक सकी। बीमारी की वजह से रुके नहीं, अपने काम पर चलते रहे, वे अंत तक चलते ही रहे। नेताजी स्वतंत्रता वाले व्यक्ति थे। उनमें स्वतंत्रता की इच्छा कूट कूट कर पड़ी हुई थी। अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी, इसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था अपने देश को आज़ाद देखना। देश आज़ाद होगा इसमें उन्हें तनिक भी संदेह नहीं था। 17 अगस्त 1945 को पूर्वी एशिया में बसे हिंदुस्तानी को अपना अंतिम संदेश देते हुए उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान के भाग्य पर से अपना विश्वास कभी मत खो। धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रख सके। हिंदुस्तान आज़ाद होगा और वह भी बहुत जल्दी आज़ाद होगा।
उनकी लेखनी में और उनके भाषणों में लगता है कि ये भविष्यवक्ता की दूरदर्शी उनके पास थी। उनको दिख रहा था क्या आने वाला है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब हम नेताजी को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद करते हैं तो हम यही याद रखना ज़रूरी है कि उनकी नज़र में आज़ादी का क्या मतलब था। वे उसे गहरे रूप में ग्रहण करते थे। उनकी नज़र में देश की आज़ादी पाना केवल राजनीतिक दास्तान से मुक्त होना नहीं था, बल्कि जीवन के सर्वोत्तम रूप को प्राप्त करना था। 16 अक्टूबर 1929 को लाहौर के विद्यार्थी सम्मेलन में उन्होंने कहा था, मैं उसको दोहराना चाहूँगा, स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसे विभिन्न अभिधार्थ हैं और हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा का तात्पर्य विकास की प्रक्रिया है। स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की तरक्की है। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य सर्वतोन्मुखी स्वतंत्रता, व्यक्ति के अलावा समाज के लिए स्वतंत्रता, धनी के साथ साथ निर्धन के लिए स्वतंत्रता, आदमी के साथ साथ महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, सही वर्गों के लिए स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ राजनीतिक बंधनों से मुक्ति नहीं है, वरना इसका तात्पर्य धन का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं की समाप्ति है, सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का विनाश। ये एक आदर्श है जो कठोर विचार वाले नारियों के लिए स्वप्नदर्शी प्रतीत होता है, किंतु एकमात्र यही आदर्श आत्मा की भूख को शांत कर सकता है। ये नेताजी ने आज से कितने बरस पहले कही थी बात, और ये बात उनके दिमाग में हमेशा थी। 1929 की बात है। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सन 1948 में नेताजी ने हरिपुरा में अपना जो भाषण दिया था, उसमें मुझे उनके विचारों का साथ है होता है। उस भाषण में उन्होंने केवल आज़ादी की लड़ाई के बारे में अपने विचार रखे थे, बल्कि ये भी बताया था कि उसकी आज़ादी के बाद भारत को क्या और कैसा बनना। वो चिंतक थे। अभी तो चर्चा हुई वो उनकी राजनीतिक आज़ादी के योद्धा के रूप में, लेकिन साथ साथ वो सिर्फ आज़ादी के साथ साथ आज़ादी कैसी होगी उसके बारे में सोचते थे। हरिपुरा में उन्होंने भारत की विदेश नीति, आर्थिक पुनर्निर्माण, राजनीतिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण आदि तमाम बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। गणतांत्रिक व्यवस्था का पक्ष लेते हुए नेताजी ने स्पष्ट रूप से कहा था, हमारा उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत को प्राप्त करना है और मेरे विचार से इस देश को एक ऐसी संघीय गणराज्य के माध्यम से पाया जा सकता है जिसमें प्रांत एवं राज्य स्वैच्छिक रूप से भागीदार हों। जो फेडरल सिस्टम की बात हम करते हैं, नेताजी ने कितनी बरस पहले उस वो विचार हमारे सामने रखा था। नेताजी के मन में जनतंत्र के लिए गहरा सम्मान का भाव था। इसी प्रणाली को, जनतंत्र को तो देश के लिए उपयोगी और हितकर मानते थे। वे जानते थे तानाशाही और डिक्टेटरशिप शासन किस प्रकार जनता के हित के विरुद्ध में काम करता है। हरिपुरा कांग्रेस के अपने भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था,
ये विचारणीय चीज़ है और मेरे समझ में आज भी हम लोगों को रास्ता दिखा सकती है। उन्होंने कहा था, एक से अधिक अध्यक्ष रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कहा है, ये उनके शब्द है, एक से अधिक पार्टी का अस्तित्व तथा कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक आधार भविष्य में भारतीय राज्यों की तानाशाह बनने से रोके। उनको, नेताजी को अपने देश के हालात की गहरी पकड़ थी। उनका मानना था कि हमारे देश की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और रचनात्मक कार्यों के, इसके लिए रचनात्मक कार्यों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है और तभी भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर कृषि उद्योग को खड़ा करने, लोगों में वैज्ञानिक चेतना जागृत करने तथा जनसंख्या को नियंत्रित करने जैसी महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया था। मैं तो ये मानता हूँ कि ज़रूरी है कि हम लोग गहराई से जो उन्होंने कहा है उन बातों का अध्ययन करें और देखें कि आज भी वो कितनी काम की हैं, कितना रास्ता दिखाने वाली हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, ये उनके शब्द हैं, पुनर्निर्माण की दृष्टि से हमारी पहली समस्या यह है कि किस प्रकार अपने देश से गरीबी को ख़त्म करें। इसके लिए भू प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन के साथ ही जमींदारी प्रथा ख़त्म करनी होगी। उस वक्त कहा था, किसानों को कर्ज की दास्ता से उबारना होगा तथा गांव के लोगों को सस्ते दरों पर कर्ज देने की व्यवस्था करनी होगी। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सहकारिता आंदोलन को बढ़ाना होगा। कोऑपरेटिव की बात, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आधार पर अपनाना होगा। वैज्ञानिक आधार पर कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। जो हमको आज सफलता मिली है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी बात होती है, वो वैज्ञानिक तरीके से कृषि को लेने से हुई है। उन्होंने कहा था, औद्योगिक विकास के लिए व्यापक योजना तैयार करना अनिवार्य है। पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई औद्योगिक प्रणाली स्थापित करनी होगी। घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने की संभावना देखनी होगी। यहाँ आप देखेंगे कि नेताजी सिर्फ आज़ादी की बात नहीं सोच रहे थे, सिर्फ कहते नहीं थे कि आज़ादी मिलेगी, वो कहते थे कि आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या करना होगा। और सबसे बड़ी बात आप देखें, आज इसकी इतनी चर्चा होती है निरस्त्रीकरण की, डिसआर्मामेंट की। नेताजी ने ये बात उस वक्त कही थी हरिपुरा कांग्रेस में। उस वक्त तक दूसरी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। उसी समय उन्होंने इस बात किया था जिस पर आज तक चल रहे हैं अखिल भारतीय युवक सम्मेलन कलकत्ता में। उन्होंने 25 दिसंबर 1928 को जब तक उनके शब्द थे और हमारे लिए आज भी सबक, जब तक सारा संसार वैसे निरस्त्रीकरण की नीति स्वीकार नहीं कर लेता, स्वतंत्र भारत को सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। नेताजी उन लोगों में थे धर्म को एक दूसरे से जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखते थे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हरिपुरा में उन्होंने बात साफ रूप से कही, साफ घोषणा की थी कि देश में अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करेगा, लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स। इसके पहले भी 3 मई को महाराष्ट्र प्रांतीय सम्मेलन पूना के अध्यक्ष रूप में उन्होंने कहा था, धर्मांतता
सांस्कृतिक अस्मिता के मार्ग में सबसे बड़ा कांटा है और धर्मांधता को दूर करने के लिए निरपेक्ष एवं वैज्ञानिक शिक्षा से अधिक उपयुक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा एक अन्य प्रकार से भी उपयोगी है। इससे आर्थिक चेतना के विकास में सहायता मिलती है। आर्थिक चेतना का प्रभाव धर्मांधता के अंधकार का विनाशक है। नेताजी अपने कार्यों के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, धर्म को एक सूत्र में पिरो कर आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने हेतु प्रेरित किया। अपनी इस कार्य की चर्चा करते हुए बापू ने, गांधी ने 24 फरवरी 1946 के हरिजन में बिल्कुल सही लिखा था, सुभाष के लिए उनकी राष्ट्रभक्ति किसी से भी कम नहीं थी। उनकी बहादुरी उनके सभी कामों में झलकती थी। नेताजी और उनकी सेना ने हमें वर्ग, समुदाय, जात और व्यवसाय से उठकर आत्मत्याग और एकता का संदेश दिया था। आत्मत्याग, बलिदान और एकता का संदेश दिया था। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की 52वीं जयंती पर भेजे अपने संदेश में 23 जनवरी 1948 को कहा था, यदि हमें उनकी, सुभाष चंद्र बोस की स्मृति और कार्यों का आदर करना है तो हमें पहले से यह चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारे देश में एकता हो और हम धर्म के आधार पर न सोचकर अपने मुल्क के आधार पर सोचें। आज हमारा देश एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। इसके राजनीतिक और आर्थिक परिवेश में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हम एक नई सहस्राब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी आ रही है 21वीं सदी शुरू होने वाली है। आने वाला समय अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि पूरा देश एकजुट हो, आगे बढ़ने का संकल्प ले। हम अपने उन विचारों को साकार करना होगा जो नेताजी ने हमारे सामने रखे थे। इससे हम एक स्वावलंबी और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने में योगदान कर सकेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय युवाओं में आज़ादी के लिए जोश पैदा किया था। आज वही जोश राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए चाहिए। इस आज़ादी के लिए नेताजी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को आगे बढ़ाया था और लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। हमें आज आज़ादी की उस नींव पर एक मजबूत देश की इमारत खड़ी करना है। देश के प्रत्येक नागरिक का धर्म है कि वो इसकी में काम करे और ऐसा करके ही हम लोग अपनी सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए व्यक्त कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ में राष्ट्र की ओर से और अपनी ओर से अपना सम्मान, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ, मैं तो कहूँगा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग उस रास्ते पर चल सकें जो उन्होंने बताया था, ताकि जो उन्होंने कुर्बानी दी, जो उनको रास्ता दिखाया, देश उस पर चलकर आगे बढ़ सके और हमारे बच्चे और बच्चियाँ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सुखी हों और सीना तान कर दुनिया में चल सकें। जय हिंद।
very nice. Amazing.